એ માઈ કાંગલા સિવાય કોઈ બીજા લોકો કરે? આવો સૌ સાથે મળીએ. મને મીડિયા વાળાએ કહ્યું કે શું લાગે છે? મેં કહ્યું એક શબ્દ બોલવાની જરૂર નથી. 4 કિલોમીટર આમ 4 કિલોમીટર આમ અને ગ્રાઉન્ડમાં જે આ ભાઈઓ અને બહેનો છે એના ઉપર કેમેરો ફેરવી લ્યો. ગાંધીનગર પણ ડોલશે અને સેન્ટર ગવર્મેન્ટ પણ ડોલશે. આપણે સૌ જેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ એવા આપણા બંને રિસ્પેક્ટેડ સીએમ ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યા છે. એટલે હું ટૂંકમાં કહું છું કે યાદ રાખજો, ઈમાનદારી નો રોટલો અને પરસેવાનો રોટલો તમારી અને મારી માએ આપને ખવડાવેલો છે. ઈમાનદારી જે લોહીમાં વહે છે એ ન વેચાય, ન ડરે. અને એટલા માટે જ્યાં લોકો છે, હું ઘણી વખત કહું છું કે લોકશાહી એ કોઈના પપ્પાની જાગીર નથી. લોકશાહીમાં જો કોઈ રાજા હોય તો એ લોકો છે, લોકો. અને હે મારા ભાઈઓ અને બહેનો, લોકશાહી ઢબે જો જવાબ આપવો હોય, તંત્રની આંખ ખોલવી હોય, ચૈતરભાઈ વસાવા અને એના પરિવાર ઉપર થયેલો અન્યાય જો નાથવો હોય તો કોઈ પણ લાલચમાં આવ્યા વગર, કોઈ પણ પ્રલોભનમાં આવ્યા વગર, કોઈ પણ ડર વગર બતાવી દો કે દેશની અંદર હજારો વર્ષ પહેલા પણ આદિવાસી બાપ હતો, આજે પણ બાપ છે અને 1000 વર્ષ પછી પણ આદિવાસી બાપ રહેશે, બાપ રહેશે, બાપ રહેશે. જય હિન્દ, જય લોકશાહી. તૈયાર છો? લડી લેવા માટે તૈયાર છો? ચૈતરભાઈને ન્યાય અપાવવા માટે તૈયાર છો? બહેનોના રક્ષણ માટે તૈયાર છો? જીભાન આપો, 2 હાથ ઊંચા કરીને જીભાન આપો. કુળદેવી યા મોગી માતાની સાક્ષીમાં, કુળદેવી યા મોગી માતાની સાક્ષીમાં જીભાન આપો કે મૃત્યુ પસંદ કરીશું, પણ આ અન્યાય માટે જરૂર પડે તો ખપી જવું પડશે તો ખપી જવું. હા કે ના? બોલો કુળદેવી યહા મોગી માતા કી, બોલો કુળદેવી યહા મોગી માતા કી, બોલો કુળદેવી યહા મોગી માતા કી. જય હિન્દ, જય હિન્દ. ભારત માતા કી જય. જય આદિવાસી, જય આદિવાસી, જય આદિવાસી. भारत माता की, भारत माता की जय जोहार, जय जोहार. આજે જનનાયક ભાઈ ચૈતર વસાવાની સમર્થનની અંદર દૂર દૂરથી પધારેલા આપ સૌ ક્રાંતિકારી સાથીઓ આપણી વચ્ચે ટૂંક જ સમયમાં ઉપસ્થિત થનાર આપણા રાષ્ટ્રીય નેતા દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માનજી અને સાથે તમામ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, પદાધિકારીઓ, આજે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા છે. આપ સૌનો ભાઈ ચેતરભાઈ વતી હું આભાર માનું છું. સાથીઓ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજે સત્તામાં બેઠેલી આ સરકાર ચેતરભાઈના પરિવાર અને ચેતરભાઈ ઉપર શા માટે અત્યાચાર કરી રહી છે. જો એ ચોર લૂંટાળુ ટોળકીની અંદર હોત, જો એ ભાજપના લૂંટારાઓની સાથે હોત તો એ આજે જેલમાં ના હોત. જો એ બુટલેગર હોત, નકલી કચેરી ચલાવવાવાળો હોત તો એ આજે જેલમાં ના હોત. એવા તમામ લોકોને ભાજપ પોતાનો ખેસ પહેરીને એમાં સામેલ કરાઈ લે છે. ચૈતર વસાવા એ આદિવાસી સિંહ છે કે જેમના બાપ દાદાઓને પણ અંગ્રેજો ઝુકાઈ નતા શક્યા. ચૈતર વસાવાને ઝુકાવવાનું કામ આ ભાજપ ક્યારેય કરી શકવાની નથી. સાથીઓ, આ લડાઈ જે છે એ માત્ર ચૈતરભાઈની નથી. આ સરકાર જે આદિવાસીઓની જમીનનો અધિકાર આપવા નથી માંગતી,
એ આ જમીનની લડાઈ છે. ચેતરભાઈએ જો એ ખેડૂતના ખેતરમાં કપાયેલા કપાસની સામે અવાજ ન ઉઠાવ્યો હોત તો કદાચ આજે જેલમાં ન હોત. વર્ષોથી જે જલ, જમીન અને જંગલની લડાઈ આદિવાસીઓ લડી રહ્યા છે, એમના માટે ચેતરભાઈએ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. અને એટલા માટે આજે એમના ઉપર આ અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. સાથીઓ, ચેતરભાઈ તો એમના રાજનીતિક દુશ્મન છે. ચેતરભાઈ સાથે એમની દુશ્મની છે. પણ એક બહુ મોટી ભૂલ ભાજપે કરી. એમના પરિવાર ઉપર એમણે હાથ ઉઠાવ્યો છે. અને આ આદિવાસી સમાજ, આ ગુજરાતની જનતા આ ક્યારેય અત્યાચાર સહન નહીં કરી શકે. અને એટલા માટે આજે આપણે સૌ એમના સમર્થનમાં અહીંયા આવ્યા છે. ચેતરભાઈના ધર્મપત્નીનો કોઈ વાંક નથી, એમના પરિવારનો કોઈ વાંક નથી. પણ માત્ર ને માત્ર ચેતરભાઈને હરાવવા માટે, ઝુકાવવા માટે આ અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો છે. અને એમનો આપ સૌએ એટલી મોટી વિશાળ સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને એ ભાજપને જવાબ આપ્યો છે કે ચેતરભાઈ આધુનિક ગુજરાતની અંદર આજના સમયનો લોકનાયક છે, જનનાયક છે. એકમાત્ર ગુજરાતનો આ નેતા છે કે જે લોકોના હૃદયમાં વસેલો છે. આપણા સૌના માટે આ લડાઈની આજના દિવસે આપણે શરૂઆત કરી છે. આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી આવે છે. આપ સૌ સાથીઓને પૂછવા માંગુ છું કે ચૈતરભાઈને જેલમાંથી કાઢીને આપણે સંસદમાં પહોંચાડવા છે કે નહીં? ચૈતરભાઈને સંસદમાં પહોંચાડવા છે કે નહીં? જો આપણે ચૈતરભાઈને સંસદમાં બેસાડવા માંગતા હોય, આપણી આ લડાઈ મોદીની આંખમાં આંખ નાખીને મજબૂત કરવા આપણે સૌ માંગતા હોય, તો ચૈતરભાઈને આપણે ભરૂચ લોકસભા ઉપરથી જીતાડવા પડશે. અને એને જીતાડવા માટે માત્ર આ ઝંડો લઈને કે પાર્ટીની ટોપી પહેરીને આપણે ઘરે બેસી રહીશું તો નહીં થાય. સાથીઓ, આપ સૌનો સાથ જોઈએ છે. ભરૂચની અંદર, આદિવાસી તમામ વિસ્તારની અંદર એક એક બૂથ ઉપર આપણે જીતવાનું છે. એક બૂથ પણ ભલે ભાજપ દેશની અંદર 400 સીટો લઈ આવે, પણ આપણે એવી હિંમત બતાવવાની છે કે ભરૂચની અંદર ભાજપને ચોક્કસ હરાઈશું. ચેતરભાઈના સમર્થનમાં આપણે ઉતરી જઈશું અને ચેતરભાઈ માટે આપણે ભાજપને જરૂર હરાઈશું. સાથીઓ, સામાન્ય માણસો જ્યારે દિવસ રાત એક કરી પોતાનું ઘર ચલાવતા હોય, બાળકોને ભણાવવા માટે દિવસ રાત એક કરતા હોય, એવા સમયની અંદર આ સરકારો આપણી શાળાઓ ખાઈ જાય, આપણા અધિકારો ખાઈ જાય, આપણા અધિકારના પૈસા, આપણો તમામ જે એક સામાન્ય માણસને આજે જરૂર છે એ ખાઈ જવા વાળા લોકો સત્તામાં બેઠા છે. મને પૂરો ભરોસો છે ભરૂચની જનતા ઉપર, આદિવાસી સમાજ ઉપર અને તમામ એવા સામાન્ય માણસો ઉપર જે ઈમાનદારીની મહેનત કરે છે, ઈમાનદારીથી ખાય છે અને આ ચોરો જે છે એ એમના અધિકારોનું ખાઈ જાય છે. સાથીઓ, આપણા સૌના માટે આ મોકો છે. ચેતરભાઈ જેવો ભાગે જ કોક જનનાયક જનતાને મળતો હોય છે. આ લડવૈયો યુવાન આજે આપણા સૌના માટે બહુ મહત્વની કડી છે. આપણા સૌના માટે આપણા લડતનું એક હથિયાર છે. અને જ્યારે ચેતરભાઈ જેલમાંથી છૂટે અને જ્યારે ચેતરભાઈ આ વિધાનસભાઓની અંદર, લોકસભામાં પ્રવાસ કરે, ત્યારે સૌથી મોટી સંખ્યામાં આપણે સૌએ હાજર રહેવાનું છે અને આ લોકસભા સીટ ઉપર આપણે એમને જીતી બતાવવાના છે. આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદજીને સાથે ભગવત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. ચેતરભાઈના પરિવાર સાથે એમની મુલાકાત ચાલે છે. એમના પરિવારને સુખ દુઃખની વાતો, એમના પરિવાર સાથે થયેલા અત્યાચારની વાતો કરે છે. ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે અને અહીંથી આપણે જે સંદેશ લઈને જઈએ છીએ એ સંદેશ ગામે ગામ અને ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવાનો છે. કોઈ એક વ્યક્તિની આ લડાઈ નથી, માત્ર ચૈતર વસાવાની આ લડાઈ નથી. આ લડાઈ આપણા સૌની છે અને આપણે સૌએ મહેનત કરવાની છે અને સમય આપવાનો છે. આપ સૌના સાથ સહકાર સાથે આવતીકાલે અરવિંદજી ચૈતરભાઈ વસાવાને જેલમાં મળવા પણ જવાના છે. એમની સાથે પણ વાત કરવાના છે. ગુજરાતના અને દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે એક ક્રાંતિકારીને મળવા માટે બે મુખ્યમંત્રીઓ જેલમાં જતા હોય. આપણા સૌના આ સૌભાગ્ય છે.
આપણે માનનીય અરવિંદજીનો આભાર માનીએ કે દેશની અંદર ખૂણે ખૂણે જે લડાઈઓ લડી રહ્યા છે, ગુજરાતની અંદર જે સામાન્ય લોકો લડાઈ લડી રહ્યા છે, એમણે હિંમત આપી છે. આપણે અરવિંદજીનો આભાર માનીએ કે ચેતરભાઈ જેવા યુવાને એમણે પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે, એમને ધારાસભ્ય બનાવ્યા છે અને આજે એમના માટે એ પોતે સમય કાઢી અને તમામ પ્રકારના કામો સાઈડ મૂકી અને આપણા માટે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. હું આપ સૌના વતી માનનીય અરવિંદજીનો પણ આભાર માનું છું, માનનીય ભગવત માનજીનો પણ આભાર માનું છું અને હું સમગ્ર આમ આદમી પાર્ટીના તમામ સાથીઓ કે જેમણે આ જહેમત ઉઠાવી છે, કે જેમણે આ સભા માટે આટલો વિશાળ જનસમૂહ ભેગો થાય એના માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે, સૌનો આભાર સાથે ભારત માતા કી જય. इनकलाब वंदे जय आदिवासी. आज आपके बीच आके बहुत जोश आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ कोई किसी की निंदा चुगली या किसी की आलोचना करने नहीं आए. हम एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में आए हैं जो आप लोगों की लड़ाई लड़ता लड़ता जेल में है, लेकिन जेल में से भी जो चिट्ठी उसने लिखी है, इसका मतलब हौसले बुलंद है. सबको नमस्कार. ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है. जो भी लोगों की लड़ाई लड़ता है और जो लोगों को लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है. ये पहले से होता आया है, ये बिरसा मुंडा से होता आया है, ये भगत सिंह से होता आया है, ये करतार सिंह सराबा से होता आया है, ये उधम सिंह से होता आया है, ये लाला लाजपत राय से होता आया है, ये चंद्रशेखर आजाद से होता आया है. पहले से होता है. लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लाम लश्कर ढेर हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं. जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, ये पब्लिक है, सब जानती है. लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर. बहुत बड़े बड़े उतार लेते हैं लोग. चेतर भाई बसावा क्या लड़ाई लड़ रहे थे? सुबह 4 बजे आके कपास की फसल बर्बाद कर दी किसान की, आदिवासी किसान की. जमीन हमारी है जी. उन्होंने कहा नहीं, चलो पैसे दो इसके. कैसे जमीन हम तुम्हारी है? अरे 3 जा हैं. मैंने पेशा कानून पढ़ा. 3 जा हैं. जा इंग्लिश में कह लो जे, जो आपके हैं, जल, जंगल, जमीन. और उनमें से जमीन छीनने आए थे. तो चेतर भाई आगे खड़े हो गए, भाई ऐसा तो नहीं होगा. उठा के जेल में फेंक दिया. कहते जी ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं आम बंदों की, जेल में फेंक दो. दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के वफादार सिपाही स्कूल बनाने लग गए. बड़े शानदार स्कूल बना दिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में. तो किसी ने जाके बड़े साहब को कहा, मोदी जी को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं. जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था, वो रो रहे हैं जी, ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे, इतने शानदार. तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो. मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब. फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास, कि जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां. तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी, हमने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं. ये सरकारी को रोको.
तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी सतिंदर जैन। जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह। जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। क्या करें, क्या करें? ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे। ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। जब भी कोई सिस्टम को बदलने की बात करता है, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हमेशा बाउंस बैक करते हैं। ये बात याद रख लेना भाई साहब। हम चेत्र भाई के साथ खड़े हैं। ये जेलें रोक नहीं सकती, दरियाओं का रास्ता खुद बनता है। दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेत्र भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाएंगे। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब। ये देखो कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं आए, कोई पैसे देके तो नहीं लाएगा आपको। उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। जैसे ही साहब बोलने लगे 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है मोदी मोदी मोदी। उनकी दिहाड़ी खत्म। उसके बाद हद है यार, हद है यार। कभी तो सच बोल दो। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपके खाते में आया तो नहीं ना? हमारे पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, तो हम एक जैसी हैं। जुमला था 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? अब तो ये भी नहीं पक्का बताओ, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हम तो गांव वाले हैं, हमें तो आती है, हमें तो आती है ना। 2 ईंटों का चूल्हा बना के भी हम गांव में करते रहे। आपका कल्चर, आदिवासी का कल्चर, पंजाब के मालवे के गांव का कल्चर एक ही सेम है। यही तीर हम भी बनाते रहे हैं, सामने मुखी लगा के सिर्फ चलाते रहे। तूत की छठी का बनाते थे हम, रस्सी से। कल्चर एक है हमारा। हम लोग धरती से निकले हुए लोग हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार। कभी तो सच बोल दो देश के साथ ना। भाई साहब जुमले सुनाते, जुमले। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्री बहुत जोर पे काम कर रही है। अभी आने वाले दिनों में जुमले आएंगे। एक तो आ गया, लॉलीपॉप देंगे आपको, लॉलीपॉप के सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। और हम इस बात पे खुशी मनाते हैं, कमाल है भी 200 रुपए सस्ता। लेकिन ये नहीं सोचते 1000 रुपया महंगा भी इन्होंने किया था। ये तो वो वाली बात हो गई। ये बात याद रखना, घर जाके अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को बता देना। भगवंत मान आया था, उसने बताई थी कैसे जुमले सुनाते हैं, कैसे पब्लिक इनके झांसे में आती है। एक घर में शादी थी, लड़की की शादी थी, बहुत लाडली बेटी थी। तो घर वालों ने कहा कि खूब शानदार शादी करनी है, खर्च वर्च करेंगे, उसके लिए दहेज, उसके लिए अलमारियां, टीवी, सोफा सेट, जेवर इकट्ठे कर लिए। आज रात को घर पे सामान आ गया, कल बारात आनी थी। डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। अब ये बात जोड़ना मोदी जी के जुमलों के साथ। तो डाकू को पता चल गया कि घर में माल है। डाकू आए, ट्रक लेके आए,
उन्होंने सारा सामान ट्रक में भर लिया और ट्रक को ले जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कहां है? तो उन्होंने कहा, सर इस कमरे में बंद है, खोलो। खोला गया तो अंदर गए, परिवार डरा बैठा था बहुत। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में से 100 रुपया निकाला, उसको शगन दिया, बेटा आशीर्वाद है, आपको बहुत मंगलमय जीवन हो, बहुत आशीर्वाद है, और लूट के चले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, परिवार का कोई मेंबर पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के भले ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन ले गए। यही हमारे साथ करते हैं, हम तो 4.5 साल लूट लिया लेकिन 200 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया यार, कमाल कर दिया। सच्ची बात है ना? तालियां बजा के स्वागत करेंगे फिर सबका। तो ये लोग यार, इनके पीछे पड़े हुए हैं हम लोग। कमाल है यार, कमाल है। ये हमारे चेतर भाई जैसे शेरों को अंदर करेंगे क्या? शेर पिंजरे में नहीं रहता भाई साहब, पिंजरे में भी रहता है, घास नहीं खाता। शेर अपना शिकार खुद करता है भाई साहब। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है और हम इनके शेर हैं भाई साहब। ऐसे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब, बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम। आ जाओ ईडी वालों, बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन होती है, चेतर भाई को अंदर कर दो। जब भी कोई चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते क्या? देश तुमने आजाद करवाया था। अरे भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां भूल गए। 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे भाई साहब, आपने करवाया था याद यार। तुम कौन होते हो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने वाले? हद है, हैरानी है, कमाल है। लेकिन आदिवासी समाज के साथ खड़े हम। हमें पता है आप लोग मेहनती लोग हो, हमें आपकी हाथों की और पैरों की दोनों लकीरें पता है भाई साहब। हमने खुद खेती का काम किया हुआ है, 25-25, 30-30 फुट गहरे कुओं में से निकले हुए लोग हैं हम लोग। आप भी ऐसे लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश दे दिया हमने यार। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी, यह बात भी याद रख लेना, इसको भी मोदी जी के साथ ही जोड़ देना। एक गांव में भैंस चोरी होने लगी, एक घर की एक भैंस चोरी हो गई। अगले दिन 2 भैंस चोरी हो गई किसी और घर की, उससे अगले दिन भी एक भैंस चोरी हो गई। तो गांव वाले परेशान होके एक बाबा के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि बाबा जी क्या करें, भैंस चोरी हो रही है हमारी लगातार, कोई उपाय बताइए। तो बाबा जी ने कहा, गांव में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, एक चद्दर लेके 4 जाने चद्दर ओढ़ के खड़े हो जाओ, एक कोना ये पकड़ ले, 1 2 3 4 जाने 4 कोने पकड़ के खड़े हो जाओ, पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकालो, और जिसने भी भैंस चोरी की होगी चद्दर से नीचे से जब गुजरेगा तभी मर जाएगा। भाई साहब उन्होंने चद्दर पकड़ा दी 4 बंदों को, पूरा गांव उसके नीचे से निकल गया, कोई बंदा नहीं मरा। फिर उसी साधु के पास गए, जी कोई मरा नहीं। कहते चद्दर किसने हाँ जी ऐसा। वो कहते कोई नहीं मरेगा। फिर कहते क्यों? कहते जो भैंसें चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे, हमने देश की चद्दर बेईमानों के हाथ में दे दी और अपने आप में से हम एक दूसरे का कसूरवार और दोषी ढूंढ रहे हैं। भाई साहब तो हम तो यही कहेंगे कि एक हो जाओ, है वैसे तो तुम एक ही हो, एक हो जाओ, और एक में बल है, एकता में बल है। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, ये भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सिर्फ आखिरी कपड़े पे कुछ नहीं होता। पंजाब से आया हूं, पंजाब में 42,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं 20 महीने में, सिर्फ 20 महीने में। पटवारी, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क, SDO, अभी जाने के बाद भी
10 तारीख को 700 नौकरियों का और नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं। 700 नौकरियों का 10 तारीख को चंडीगढ़ जाके बांटूंगा। और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी, बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आता है जी। और पंजाब ने एक नई उल्टी गंगा बहाई। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखा के अपने मित्रों को बेच देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने 6 दिन पहले सरकारी जो बिजली बोर्ड है हमारा, उसने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया कि तुम हमसे नहीं चलेगा तो हम चला के दिखाएंगे। ये नियत है भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, ये अरविंद केजरीवाल का खींचा हुआ एक नक्शा है। इस पे चलना है, अगर तो इस पे चल सकते हो तो चल लो, वरना सत श्री अकाल, वरना नमस्कार। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको फेम होना है, फोटो लगवानी है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ। हाँ, अगर देश की सेवा करनी है, जेल जा सकते हो, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री बनके भी घाटे में रहना पड़ेगा तो हम आ जाओ मेरी पार्टी में, आ जाओ जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में। तो ये हमारे टेस्ट ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ। आदिवासी समाज चेत्र भाई के साथ खड़ा है, हम भी साथ खड़े हैं। बहुत बड़े बड़े वकील हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जल्दी ही चेत्र भाई आपके बीच होंगे। उस दिन फिर आएंगे, उस दिन फिर आएंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे, इनकलाब। देखो भाई साहब, यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, देखो 5-7 तो आए होंगे ना। देखो उनको आना पड़ता है, बेचारों के आका भेजते हैं कि जाओ, अरविंद केजरीवाल की रैली है, जनसभा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो जाके बोल देंगे। भगवंत मान ने क्या बोला वो जाके बता देंगे। चेत्रा बाई के बारे में क्या बोला गया सब कुछ बता देंगे। कितना रश था सब बता देंगे। लेकिन वो एक बात जब पूछेंगे, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, कम से कम ये वाला सवाल तो आपके हाथ में है। जब ये पूछा जाए उनसे, यहां बैठे हुए भाजपाइयों से, कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, कम से कम वो ये बताएं। इस बात के लिए आपको पूछने की क्या जरूरत है, आपके घर तक भी तो सुने ही होंगे। थोड़ा जोर से, इनकलाब, इनकलाब। चेत्र भाई तुम संघर्ष करो, बोलो सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान प्यार से सुना। जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।